آئیں خداوند کا شکر ادا کریں. مسیح یسوع میں ہم آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کی تمام تر دلی مرادوں کو، آپ کی تمام تر تمناؤں کو، آپ کی تمام تر دعاؤں کو اپنے یسوع نام میں قبول کریں. اور آئیں ہم خداوند کا شکر ادا کریں. ہمارا خدا جو تسلی اور اطمینان کا سر چشمہ ہے، وہی بانی ہے، جو وہی ہمارا اطمینان دینے والا خدا ہے، وہی ہماری تسلی کا سر چشمہ ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے. آئیں خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کا پیار نرالا ہے اور وہ سدا جھڑکتا نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ وفادار خدا ہے جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہر روز ہمیں سنبھالتا ہے اور ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع فراہم کرتا ہے. ہمیں ہر روز ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں تو بھی وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں. اور وہ ہر روز ہم سے پہلے ہی ہمارے گروپ میں موجود ہوتا ہے، ہم سے پہلے ہی وہ اپنے کلام کے مطابق آیا ہوتا ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی ستائش کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جہاں دو جتنے میں نام اکٹھے میں وہاں پر موجود ہوں گا. آئیں جب ہمارا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس کے فرشتے موجود ہیں، اس کا پاک جنبش کر رہا ہے، وہ اپنے کلام کے مطابق جہاں پر موجود ہے، سو آئیں خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیں سنبھالے گا اپنی تمام تر زندگی کے مراحل میں، اپنی زندگی کی تمام تر مشکل میں، پرابلمز میں، سفرنگ میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، ہم ہر طرح کے حالات میں ہم اسی کی طرف دیکھیں گے اور اسی کو سراہیں گے اور اسی کے آگے آئیں گے اور اسی میں ہم اپنی تسلی اور اطمینان، اپنی شادمانی، اپنی خوشی، اپنا اطمینان، اپنا توکل، اپنا بھروسہ اسی میں ہی ہم پائیں گے، اپنا معجزہ بھی ہم اسی میں ہی پائیں گے. آئیں خداوند کا شکر ادا کریں گے. اور یس ہاللویہ، پریز دی لارڈ. سو خداوند کا شکر اور اس کی تعریف ستائش کرتے ہیں آج کے اس پاک روح کے گفٹ کے لیے کہ جو اس نے ہمیں اپنے یہ جو پیس کے تعلق سے ہم سنیں گے اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے دل میں اور اس گروپ میں ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگیں گے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان تمام گفٹ کو اپنے لوگوں کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری روح بدن اور جان کی صحت مندی کے لیے اس نے ہمارے لیے یہ گفٹ رکھے ہیں، یہ کلام رکھے ہیں، یہ کلام کی باتیں رکھی ہیں کہ ہم اس پر چلیں اور اس کو لیں اپنی زندگی میں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے. سو آج کا جو ہمارا پاک روح کا جو گفٹ ہے، جو وہ ہے پیس، ہم چاہیں گے کہ خداوند اپنے اس پیس کو ہمارے اندر بنائے رکھے، اپنے اس پیس کو ہمارے اندر گہرے طور پر آنے دے، جو صرف اور صرف ہمیں اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہی حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں صرف اور صرف یسوع مسیح میں ہی ملتا ہے. اور یس اور ہاللویہ، ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے. آئے خداوند کا شکر، اس کی تعریف کریں کہ اس کا بیٹا یسوع مسیح ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کی کوئی بھی، جب ہماری زندگی میں پرابلم آتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، تو وہی ہمارے اندر اپنی شادمانی کو، اپنی تسلی کو، اپنے اطمینان کو، اپنے پیس کو ہمارے اندر بنائے رکھتا ہے، تاکہ ہم متزلزل نہ ہو، تاکہ ہم گھبرائے نہ، تاکہ ہم پریشان نہ ہو، بلکہ ہم اس پر نگاہیں لگائے رکھے اور اپنے اس معجزے کو حاصل کر سکے جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے. تو خداوند کا شکر اور دعا گو ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند اپنے اس پیس کو ہم سب پر اور اس پورے گروپ میں کثرت سے آنے دے اور ہماری زندگیاں اس کی تسلی اور اس کے اطمینان سے اور اس کی شادمانی سے ہم ہر روز سیر اور آسودہ ہوتے رہیں اور ہم اس کے پیس کا تجربہ اس کے نام سے اور اس کے حاصل کرتے رہیں. یس لارڈ ہاللویہ، پریز دی لارڈ. اور پریکٹیکلی ہم اس پیس کو اپنی زندگی میں اس کا لے اور اس کا تجربہ کریں یسوع مسیح کے نام سے. یس مائی لارڈ ہاللویہ، گلوری ٹو جیسس، ونڈرفل. خداوند تیرا شکر ہو. او رے بے رے سی رے شندر بروز رزی رے ریزی رے بے رے سی رے شندر بروز رزی رے زور بے بری بی ریزی رے زی رے شندر بروز رزی رے زور بے بری بی ریزی رے زی رے شندر بروز رے. Praise the Lord, glory to Jesus, wonderful Lord. خداوند تیرا شکر کی تعریف ہو. خداوند اس پورے گروپ پر اب آپ تیرا تسلط، تیرے پاک روح کا کنٹرول، تیرے گارڈز اینجلز اب آپ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. خداوند پورے گروپ پر خداوند تیرا تسلط چاہتے ہیں.
हालेलुया, तेरी तारीफ पेश करते हैं खुदावन। सिस्टर शाहीन के लिए खुदावन तेरी बरकत तेरी सलामती चाहते हैं खुदावन, तेरी हुजूरी तेरी बच्ची पर हो खुदावन, तेरी बंदी तुझ में जोर पकड़े और काबों की मानी खुदावन, तेरी बंदी बालों पर से उड़े इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पूरे जोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे खुदावन बाप मस्सा के साथ, पूरी खुदावन बाप कुव्वत के साथ है बाप खुदावन, तेरी बंदी खुदावन तुझ में खुदावन बाप खुदावन आगे बढ़े और तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने और पहाड़ों को रेजा रेजा करती चली जाए और दुश्मन को शिकस्त देती चली जाए अपनी सारी जिंदगी से, अपनी सारी खिदमत से दुश्मन को शिकस्त देती चली जाए तेरे यीशु नाम में। तेरा ही शुक्र अदा करते हैं हम, सारा जलाल बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं। आज के पूरे ग्रुप पर है बाप खुदावन, हम तेरे पाक रूह की जुम्मश के चाहते हैं। सो जो हमारा गिफ्ट है खुदावन, हम चाहते हैं कि खुदावन ये पाक रूह का जो गिफ्ट है बाप, ये पीस है खुदावन, ये एक एक जिंदगी में और पूरे ग्रुप में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदावन। हम इस गिफ्ट से खुदावन अपनी जिंदगी में इसको सीखने का और इसको लेने का खुदावन बाप खुदावन खुदावन अपनी जिंदगी में ले और खुदावन इससे सीखे और इससे खुदावन अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली ले सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से बाप, हम जो दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। हम एक हवाला देखेंगे पुराने अध्याय से, यशायाह कलाम मुकद्दस में से यशायाह 53 बाब उसकी 5वीं आयत हम सुनेंगे। आवाज आ रही? आ रही है। ओके। यशायाह 53 5वीं आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीस का जो मतलब है वो है अमन, यानी अमन ईमान, या यूं कह ले कि एक मुतमईन होना, सेटिस्फाई होना, यानी पीस का मतलब ये है। तो यशायाह यानी कोई भी हालात, कोई भी ऐसी कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम हमारे अंदर एक पीस होना चाहिए, हमारे अंदर एक इत्मीनान होना चाहिए, हमारे अंदर एक तसल्ली होनी चाहिए। सो जैसा कि यशायाह नबी कह रहा है कि हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम किसी दुख में से गुजरे होते हैं, जब हम किसी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब हालात हमारे नासाजगार होते हैं, जब हम समझते हैं कि ये तो नामुमकिन काम है, ये मेरे लिए ये कैसे हो सकता है, तो हमें तब भी हमें देखिए यशायाह कह रहा है कि हमारी ही सलामती के लिए, सलामती का मतलब भी मतलब है कि हम हमारे अंदर एक पीस होना चाहिए, एक इत्मीनान होना चाहिए, एक तसल्ली हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों हमारे अंदर होगी? क्योंकि कलाम कह रहा है, हमने कलाम पर खड़े होना है। यशायाह कहता है कि हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। सो हमें दुनिया के लोगों के पास तो कोई हल नहीं है अपने मसलों का, अपने मसाइल का, लेकिन हमारे पास हमें हमारे खुदावन ने हमें अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स का जो हल है वो हमें दिया हुआ है। वो ये है कि हम यीशु मसीह पर निगाहें रखें, हम उसके कलाम पर निगाह रखें, हम उसमें मुतमईन, हम उसमें पीस को जो है वो थामे रखें, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर हमारा जो एक कह लो कि जो हमें एक सुकून है, एक तसल्ली, एक इत्मीनान, एक जॉय, एक खुशी, एक शादमानी जो है वो और कोई नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है जिसमें हम अपनी जो नजरें जो है वो हम लगा सकते हैं, अपने हाथ उठा सकते हैं, अपने होंठों को खोल सकते हैं, अपने सरों को उठा सकते हैं उसकी हजूरी में, और उस पर निगाह करने से
ताकि क्योंकि लिखा हुआ है कि वो सलामती का शहजादा है, यानी वो अमन ईमान का शहजादा है। वो हमारे अंदर हमें मुतजलजल नहीं करता है, हमें परेशान नहीं होने देता है, बल्कि जब हम उस पर निगाह करते हैं, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, तो हमारे अंदर उसका वो जो पीस जो यीशु मसीह के अंदर था, तो हमारे अंदर जब वो होता है तो हालात कैसे भी क्यों ना हो, तो हम हमारे अंदर पीस एक होता है, हमारे एक अंदर इत्मीनान होता है, एक शादमानी होती है कि मेरी ये मुश्किल जो है, मेरी मुश्किल जो हल है वो मेरे पास है, और वो कैसे हल होगा। तो फिर हम क्या होते हैं, हम पीस में होते हैं, हम अमन में होते हैं, हम शादमानी में होते हैं, हम खुशी में होते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि हमारी उस मुश्किल का हल जो है वो यीशु मसीह में है। हमारी परेशानी का हल, हमारी शिफा का हल किसके पास है? यीशु मसीह में है। तो हम इसलिए हम परेशान नहीं होते, इसलिए हम खौफजदा नहीं होते, क्योंकि हम यीशु मसीह में हम अपने पीस को क्या करते हैं, हासिल करते हैं, अपनी शादमानी को, अपनी शिफा को, अपने मौजे को हासिल करते हैं। तो जरूर है कि मतलब हम इधर उधर जाए, जरूर है कि हम अपने उस किसी की शिफा के लिए इधर उधर भागे, जादू तावीज पामिशी करे, किसी भी ऐसी जिंदगी के पास जाए, किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी शख्सियत, कोई भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने खुदा पर निगाहें करनी है, उसमें हमें शादमान रहना है, ताकि हम अपने मौजे को और अपने उस पीस को, अपनी शादमानी को हम हासिल कर सके। सो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ इस कलाम के लिए कि हमारी ही सलामती के लिए हमारे खुदावन, हमारे यीशु मसीह पर क्या हुई है, सियासत हुई है, ताकि हम भटके ना रहे, ताकि हम किसी भी ऐसी चीज का शिकार ना हो, बल्कि हम उस पर निगाहें लगाते हुए हम तसल्ली में, इत्मीनान में रहे, ताकि जब कोई मुश्किल आए तो हम परेशान ना हो। तो हम चाहते हैं कि खुदावन इस पीस को, इस सलामती को, इस शादमानी को, इस तसल्ली को, इस जय को हमारे अंदर बनाए रखे। तो खुदावन का शुक्र है, उसकी तारीफ सताइश करते हैं। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। हम बॉबी के साथ वर्शिप करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? अच्छा, अगर बॉबी हमारे साथ है तो हम बॉबी के साथ करेंगे, नहीं वरना तो सराफी और सनिया हमारे साथ। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। खुदा के नाम को जलाल देते हैं, वर्शिप शुरू करते हैं। सारे जग दे तू नाए पा, कर मेरी अमी तक सिरा माँ के यसु तेरा ना सुनाए, सुनाए सुनाए यसु ना सुनाए, कर मेरी अमी तक सिरा माँ के यसु तेरा ना सुनाए, सुनाए सुनाए यसु ना सुनाए, आसमां दे थल्ले सच्चा होर कोई ना नहीं, आसमां दे उत्ते बिना यसु दे कोई ना नहीं, रब मोड़दा नहीं तेरी गलबा, रब मोड़दा नहीं तेरी गलबा, कर मेरी अमी तक सिरा माँ के यसु तेरा ना सुनाए, सुनाए सुनाए यसु ना सुनाए, सुनाए सुनाए यसु ना सुनाए, रोगा ते गुनाहां नूं ना होर कोई तोंदा ए, रोगा ते गुनाहां नूं ना होर कोई तोंदा ए, शाफी सारे जग दा मैं यसु पिया कहंदा ए, शाफी सारे जग दा मैं यसु पिया कहंदा ए, हथ फड़ के ते गले लेंदा ला, हथ फड़ के ते गले लेंदा ला, कर मेरी अमी तक सिरा माँ
کہ یسو تیرا نام سنائے 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 یسو نام سنائے آسماں دے اُتے جدوں یسو لے کے جاوے گا آسماں دے اُتے جدوں یسو لے کے جاوے گا زندگی دا پھل دے کے سیل وی کراوے گا زندگی دا پھل دے کے سیل وی کراوے گا رونا اکھیاں دا کر دے گا صاف رونا اکھیاں دا کر دے گا صاف کر میریاں وی تقصیراں معاف کہ یسو تیرا نام سنائے 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 یسو نام سنائے کیتا ہویا وعدہ پیارے یسو نے نبھایا ہے کیتا ہویا وعدہ پیارے یسو نے نبھایا ہے باپ کولو لے کے روح پاک کھلایا ہے باپ کولو لے کے روح پاک کھلایا ہے جیڑا ہر ویلے رہندا میرے نال جیڑا ہر ویلے رہندا میرے نال کر میری اویں تقصیراں معاف کہ یسو تیرا نام سنائے 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 یسو نام سنائے آمین پریز دی لارڈ آمین آمین پریز دی لارڈ یہ کہنا یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور اس کو وہ نام بخشا گیا سب ناموں سے اعلیٰ ہے کلام مقدس میں بتاتا ہے سو خداوند کا شکر ہو یسوع نام کے لیے کہ آج ہم اسی کے وسیلہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اور اسی کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں ہاللیلویا پریز دی لارڈ اور اسی کے واسطے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں ہر جگہ پر سو خداوند کا شکر ہو اس کی تعریف اس ستائش کرتے ہیں ہم ایک اور حوالہ پیس کے تعلق سے سنیں گے آج کے گفٹ کے تعلق سے زبور نمبر 4 اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے داؤد کیا کہہ رہے ہیں تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے میرے دل کو جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے آمین پریز دی لارڈ خداوند کا شکر ہو دیکھیں زبور میں کہہ رہا ہے کہ میری خوشی کیا ہے میں یعنی مجھے لوگوں کو تو خوشی جو ہوتی ہے وہ اپنے جو وہ جمع کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے جو وہ جمع کرنا چاہتے ہیں اپنی ہر طرح کے اس جو وہ مطلب پیسے سے دولت سے ہے نا ہر طرح کی وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ان سے خوشی ہوتی ہے نا اس سے جو ہے اس سے وہ شادمان ہوتے ہیں یا اس سے وہ تسلی حاصل کرتے ہیں وہ ان میں مطمئن رہتے ہیں وہ ان میں اپنی جو خوشی ہے وہ فیل کرتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ ان کو جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے لیکن کہتا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا سلامتی کا بھی یہاں پر ہم جو میننگ لیں گے وہ یہی ہے کہ پیس ہے پیس یعنی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ تو مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ زبور نویس یہ سوچ رہا ہے یا اس نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے اپنی زندگی میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں اس زمانہ میں بھی لوگ دولت کے پجاری تھے لوگ دولت کو جمع کرنے میں لگے ہوں گے جب وہ دولت جمع کر رہے ہیں جب وہ کسی بھی طور سے ان کا کوئی بھی ایسا کام ہوگا جو دولت جمع کرنا بھی یہ بھی ایک بت پرستی میں ہے کوئی بھی چیز جو خدا کے برخلاف سر اٹھاتی ہے وہ بت پرستی میں ہی آتی ہے تو داؤد کہہ رہا ہے کہ مجھے ان میں ان چیزوں سے شادمانی نہیں ہے میں ان چیزوں میں خوشی حاصل نہیں کر رہا ہوں مجھے ان سے سیٹسفیکشن نہیں ہے بلکہ میں اگر بھوکا بھی ہوں گا میں اگر دکھ میں بھی ہوں گا میں اگر مشکلات میں بھی ہوں گا میں اگر پرابلم کا شکار ہوں گا کچھ بھی ہو کال ہو قحط ہو تلوار ہو تنگی ہو مصیبت ہو دکھ ہو پریشانی ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا میں سو جاؤں گا کیونکہ خداوند فقط تو ہی مجھے سنبھالتا ہے سو خداوند کا شکر ہو کہ آج اسی طرح ہمیں بھی ضرور ہے کہ ہم بھی داؤد کی طرح اپنی زندگی میں اس بات کا ایکسپیرینس کریں کہ حالات ہمارے خلاف کوئی جب ہم کہتے ہیں کہ میں
मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस दुख में से गुजर रहा हूँ, हम किसी को नहीं भी बताते हैं, लेकिन तो भी हम अपने अंदर ये बात महसूस कर रहे थे, कह रहे होते हैं, या हमें फील कर रहे होते कि मैं दुख में से, मैं मुश्किल में, परेशानी में। लेकिन हमने दाऊद पर निगाह करनी है कि दाऊद देखे किस तरह सफरिंग, प्रॉब्लम, तलवार का शिकार था, तो भी वो कहता, वो उसका दुश्मन जो साल था, वो उसे बहुत उसका बड़ा दुश्मन था, वो उसकी सारी जिंदगी में साल उसका जो था वो दुश्मन रहा है, लेकिन वो परेशान रहा है साउल की वजह से। लेकिन तो भी दाऊद कहता है कि मैं सलामती से वहां लेट जाऊंगा, खुदावन मैं तुझ में अपना पीस, अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान, अपनी नींद मैं तुझ में ही पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जरूर है कि हमारी जिंदगी में भी अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई मुश्किल है, तो हम दाऊद की तरह कहेंगे कि खुदावन मैं सो जाऊंगा, मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगा, मैं कोई सोने वाली मेडिसिन नहीं लूंगा, मैं कोई ऐसी दुआ नहीं लूंगा, मैं कोई ऐसा नशा नहीं करूंगा जिससे मैं सो जाऊं, इत्मीनान मैं जिसमें हासिल करूं, बल्कि हमारी जो तसल्ली है, हमारा जो इत्मीनान है, हमारा जो पीस है, वो हमें यीशु मसीह में मिलता है। उससे चलने से, उस पर हुक्मों पर अमल करने से, उस पर निगाह करने से, जिस तरह दाऊद अपने वो एक्सपीरियंस कर चुका है और करता है कि मैं सो जाऊंगा, मैं सलामती से लेट जाऊंगा, और क्योंकि तू मुझे संभालता है और मुतमईन रखता है। सो अजीजों, जरूर है कि हम भी इस पीस को अपने अंदर रखें, ताकि जब कोई मुश्किल आए तो हम परेशान ना हो, हम रोना धोना ना करें, बल्कि अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं। और मैं एक बात दोबारा कोट करना चाहूंगी, सिस्टर शाहीन ने बताया कि जावेद के बारे में कि कैसे, मतलब जब वो यहाँ कनाडा से गए तो वो कैसे, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर जो है बच्चों के ताल्लुक से बिल्कुल डिफरेंट है, और उधर का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों की तरबियत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। तो थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम होती है जब हम एक ऐसे कल्चर को छोड़ते हैं, दूसरे कल्चर में जाते हैं उसको अपनाने के लिए। तो जब जावेद परेशान था, मुश्किल में था, तो जब उसने अपने हाथों में ये सारा कुछ लेने की कोशिश की, तो वो और ज्यादा परेशान होता गया, और ज्यादा हालात जो थे वो टाइट होते गए, और ज्यादा मुश्किल और प्रॉब्लम आती चली गई। लेकिन जब क्योंकि उसको तसल्ली नहीं मिल रही थी, उसको इत्मीनान नहीं मिल रहा था, उसको पीस नहीं मिल रहा था, जो उसको शादमान कर सके, जो उसको गाइड कर सके, जो उसको वो डायरेक्शन दे सके कि तू क्यों परेशान होता है, तू क्यों परेशान है, तू क्यों दुख में से, तकलीफ में से गुजर रहा है। मैं जो उसको कह सके कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं सलामती का शहजादा हूँ, मैंने तेरे दुख से है, मैंने तेरी परेशानी को लिया है। लेकिन जब उसको ये भेद उस पर अया हो गया, तो अजीजों हम देखते हैं कि शाहीन ने बताया कि वो सो गया उस रात, वो सो गया, वो इत्मीनान में था, वो भूल गया, उसको एक डायरेक्शन मिल गई, उसको एक अपने जो एक कह लो कि एक हासिल जो था, एक जो पीस था उसको पता था कि मुझे पीस जो है वो कहाँ से मिलना है या मिलेगा, उसको मिल गया। और वो हम सबने सुना कि वो तसल्ली में हो गया, वो इत्मीनान में हो गया, और वो जॉय अपने अंदर फील कर रहा है, वो खुशी और शादमानी के साथ वो सो गया। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम इधर उधर से अपना पीस ढूंढते हैं, अपनी तसल्ली ढूंढते हैं, अपना इत्मीनान ढूंढते हैं, या अपना तवक्कुल या अपना भरोसा ढूंढते हैं, तो हमें नहीं मिलता है। लेकिन जब हम खुदा पर निगाह, जब हम खुदा को अपना वो बोझ देते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी वो तमाम बातें जो है, जो बोझ जो है वो देते हैं, तो हमारे अंदर एक सैटिस्फैक्शन आती है, तो हमारे अंदर हमारी जानें जो है वो क्या करती हैं, शिफा पाती हैं, और हम पीस अपने अंदर फील करते हैं। और क्योंकि यीशु मसीह है जो सलामती का, अमन ईमान का बानी है, सरचश्मा है, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। सो खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ और सिताइश करते हैं खुदा आज के इस गिफ्ट के लिए। जरूर है कि हम भी अपने अंदर इसी तरह पीस को अपने अंदर रखें, ताकि जब मुश्किल आए तो हमें रातों को जागना ना पड़े, हमें रातों को करवटें लेना ना पड़े, बल्कि हम दुआ करके ईमान के साथ और पीस के साथ सो जाए कि खुदावन मेरा खुदा मेरे लिए दरवाजे खोलेगा, खुदावन मेरे बंद दरवाजे खोलेगा, खुदावन मेरे लिए सब मुझे मुहैया करेगा, खुदावन मेरे लिए चट्टानों से पानी मुहैया करेगा, खुदावन मेरे लिए आसमान से मन बरसाएगा, खुदावन मेरे लिए पहाड़ों को रजा कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड। सो हम चाहते हैं कि खुदावंद का ये जो पीस है, ये जो सलामती है, ये जो उसकी सैटिस्फैक्शन है,
हमारे ग्रुप में कसरत से काम करे और हम उसमें बढ़ते चले जाए और हम अपनी निगाहें उसकी तरफ लगाते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं। यस माय लॉर्ड। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। अगर बॉबी आगे हमारे साथ नहीं है, बॉबी मैं देख जी बाजी हूँ मैं। ओके बॉबी, गॉड ब्लेस यू बाबू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो, आपकी तमाम राहों में आपकी हिफाजत निगहबानी करे, आपके आने जाने में और आपकी जॉब प्लेस में खुदावन आपके साथ हो और आपको कसरत से ले और अपने नाम को जला देने के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। हम बॉबी के साथ वर्शिप करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतजारी। ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। ओ खतरे ते टोए देखो बेआं चों है मैनू कढ के ले आया बाहर। चट्टान तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमां उस्तवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतजारी। खुदा ने गीत इक नवां सिखाया के जिस तो होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत इक नवां सिखाया ते जिस तो होवे तारीफ उसदी। बथेरे मन खौफ उसदा ते आस रखन आस रखन रब उते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतजारी। मुबारिकों से ताहाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा गुमंगियां कोल ओ ना जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतजारी। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। खुदावन का शुक्र है, वो भी गॉड ब्लेस यू। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि हमें सब्र से उसके साथ चलना है, ताकि जिस तरह पलूस रसूल भी कहता है कि मैं दौड़ता हुआ चला जाता हूँ। गो के उसने पलूस ने भी बहुत से दुख, बहुत सी मुसीबतें जो थी वो उठाई थी, लेकिन तो भी वो खुदावन में चलता रहा। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और यकीनन हमारा खुदा चाहता है कि हम क्या करें, सब्र से उसका रास्ता देखें, सब्र से हम उसके साथ चलते रहें, ताकि हम उस ताज को हासिल कर सकें जो उसने हमारे लिए रखा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बॉबी। खुदावन आपके साथ हो और आप इसी तरह उसके साथ लिपटे रहे, जिंदगी के हर तरह के कदर की मुश्किल में भी उससे लिपटे रहे। तो खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो।
اس طرح ہم آگے ورشپ میں پڑھیں گے. ہم سسٹر اگر سنیا ہمارے ساتھ ہے. ਹੈਲੋ سنیا نہیں. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ہیلو. ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ جی جی انجنا. اوکے اوکے. ہم انجنا کے ساتھ ورشپ میں شامل ہوں گے. پریز دی لارڈ. Praise the Lord. Praise the Lord. ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਓ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਓ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਜਾਨਿਆ ਚੋ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਓ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਜਾਨਿਆ ਚੋ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੋਈ ਛਲ ਨਾ ਕਪਟ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੋਈ ਛਲ ਨਾ ਕਪਟ ਆਵੇ ਓ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਓ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਓ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਓ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਜਾਨਿਆ ਚੋ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਲਾਲੀ ਸੋਨੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਘਮੰਡ ਆਵੇ ਲਾਲੀ ਸੋਨੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਘਮੰਡ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਓ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸੂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਓ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਖਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ
गल भी जो होवाए खुदा अज तेरी बंदगी चो खुदा अज तेरी बंदगी चो तेरी रूह दा मसावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे जिसू राजा दे खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे मेरा बल भी यहोवा तू मेरी शान भी यहोवा तू ऊंचा गढ़ भी यहोवा तू मेरी चट्टान यहोवा तू तेरे लिख लिख गीतानू ओ तेरे लिख लिख गीतानू मैं सदा सपुत गावा ओ मिठा नाम यहोवा दा ओ मेरे दिल विच वस जावे जिसू राजा दे खजाने आचो ओ मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजा दे खजाने आचो मैनू बरकत मिल जावे आमीन प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू अंजना खुदावन आपके साथ हो और आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे और खुदावन आपको अपने में बढ़ाए और खुदावन अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए और आपको अपनी जिंदगी के हर एरिया में कामयाब करे और आप जहाँ जाएं दुम नहीं बल्कि सर ठहरे और खुदावन आपकी सारी एजुकेशन लाइफ में आपके सारे फ्यूचर प्लान में खुदावन आपके साथ हो और अपना हाथ बढ़ाकर अपने फरिश्तों के वसीला से आपकी बड़ी मदद रहनुमाई करता रहे हम आपके लिए दुआ गो हैं खुदावन ऐसे ही आपके साथ रहे और आप उसी में मसरूर रहें और उसी में शादमान रहें और उसी में अपनी सरफराजी को अपनी बरकत को हासिल करते जाएं सो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं हालेलुया अब हम कलाम के अगले मरहले में अब हम अपनी इबादत के अगले मरहले में जाते हैं और हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और हम चाहेंगे कि खुदावन आज हमसे जो बात करे वो हमारे दिलों की जमीन में जड़ को लाए और ताकि जब कलाम हमारी जिंदगी में बोया जाए हमारे दिलों में डाला जाए हमारे दिलों में आए तो वो कोई भी जिस तरह से तमसील में हमें लिखा है कि कुछ झाड़ियों में गिरा कुछ मुख्तलिफ तरह की जमीन में गिरा लेकिन जरूर है कि हमारा ये कलाम जो है हमारे अच्छे दिल की अच्छी जमीन में जाए ताकि हम बहुत सा फल ला सके और उसके लिए अपने आप को दस्तयाब कर सके अपने आप को मुहैया कर सके और हम हमेशा उसको अपनी जिंदगी में अवलियत देते रहे उसका कलाम पर हमेशा बातों पर हुक्मों पर हमेशा अमल करते रहे और अपनी जिंदगी में लेते रहे सो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ सिताइश करते हैं और आए हम अपने आप को तैयार करें खुदावन के कलाम के लिए खुदावन तू आज मुझसे बोल आज तू मेरी नस नस से मेरी रग रग मेरी लू लू से मेरे बाल बाल से मेरे रूह बदन और जान से मेरे जिस्म में दौड़ने वाले खून से मेरी एक एक मेरे तमाम अज़ू से बॉडी के अज़ू से मेरी तमाम मेरे घर में मेरी हवा में मेरी फिजा में मेरी रोशनी पानी बिजली गैस आटे तेल में खुदावन ए बाप तेरा कलाम ए बाप सरायत करे तेरा कलाम ए बाप काम करे यीशु मसीह के नाम से यस माय लॉर्ड हालेलुया रोज़रे ज़ियरे शिंदरे बेरे ज़ेरे बेरे बीरिज़ी और ज़ोरे शिंदरे बोरे ज़िल आए खुदावन के कलाम को मांगे क्योंकि जो मतलाशी होता है वो उसको भरता है जो खाली होता है वो उसको भरता है और जो मतलाशी होता है वो पा लेता है जो उसे ढूंढता है लिखा है कि वो उसको पा लेता है आए हम खुदावन को खुदावन के लिए तरसे हम खुदावन के लिए भूखे और प्यासे हम उसके कलाम के शिनमा होने के लिए हम हाजिर हों और चाहें कि खुदावन तू आज मुझसे बात कर तू आज मुझसे बोल है खुदावन तू आज मेरे घराने से बोल तू आज मेरे बच्चों से बोल तू आज मेरे हस्बैंड से बोल तू आज मेरे एक एक मेरे बॉडी के अज़ू से कलाम कर यीशु मसीह के नाम से आज मेरी बंजर जमीन जो है वो अब सैराब की जाए आज बंजर बन जाता रहे
आज हर तरह का खुदावन बाप जो भी बाप वो नुकसान है वो नफा में तब्दील हो जाए तेरे कलाम के वसीला से, इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से। आज मेरी जिंदगी से तेरे कलाम के वसीला से दुश्मन शिकस्त खाए, आज दुश्मन के प्लान मेरी जिंदगी से तेरे कलाम के वसीला से फेल होते चले जाएं। आज खुदावन दुश्मन मेरे हाथों से पीछे हटे तेरे कलाम के वसीला से, यीशु मसीह के नाम के वसीला से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। आए खुदावन का शुक्र अदा करें और खुदावन का शुक्र अदा करें कि वो हमारे लिए अपने कलाम, हमारे लिए रोज की रोटी को हमारे लिए मुहैया करता है, और हम हर रोज हम घर में अपने अपने घरों में बैठे, अपने अपने बिस्तर पर बैठे रिलैक्स होकर हम उसकी हुजूरी में बैठे हुए हैं। हमें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, ये खुदावन का फजल है, ये खुदावन ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम दूर और नजदीक बैठे हुए हैं तो भी हम उसमें एक है और हम उसके कलाम को, उसकी आवाज को सुन सके हैं। एक प्लेटफॉर्म के जरिए हम खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। और यस फादर गॉड, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं जलाल का बादशाह, हम तुझे मुबारक करते हैं, तुझे सिजदा करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन बाप, क्या बाप आसमानी तूने हमारे लिए ये खुदावन प्रिविलेज तूने हमारे लिए रखा, क्या बाप हम तेरी आवाज को सुन सके, हम इस तेरे इस बदन में से खा सके। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र तेरी तरफ से अपने बंदी के साथ हो खुदावन, तेरी हुजूरी का बात बच्ची पर जोर से बरस आसमान खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुला रहे, और तेरे तेरे फरिश्ते तेरी बच्ची के साथ हो, तेरा पाक तेरी बच्ची के साथ हो, और कसरत से ले और इस्तेमाल करे, और कसरत का मसा है, कसरत की हुजूरी है जिसके वसीला से बाप बंधन खुले, जीवे टूटे, और दुश्मन शिकस्त खाए और दुश्मन के प्लान फेल होते चले जाएं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अल कादर नाम में, आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू श्रेया, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से आपको इस्तेमाल करता रहे, और आप इसी तरह खुदावंद के नाम को ऊंचा करती रहें। खुदावंद का मसा आपके ऊपर हमेशा ठहरा रहे, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता, हमें अपने साथ ले नहीं जाता। आप खुदावंद के बाजुओं में छुपी रहें। खुदावंद आपको अपने परों में छुपा के रखे, अपने सीने से लगा के रखे, और खुदावंद आपकी जिंदगी में पाकरू की नेमतें, पाकरू के फल आपकी जिंदगी में काम करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम रोटी और पानी के लिए पहले करते हैं प्रेयर, फिर हम कलाम के लिए। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, ये जो रोटी और पानी खुदावंद अब तेरे बदन में और तेरे लहू में तब्दील हो गया है। खुदावंद जब हम इसको लें अपने बदनों में हर किस्म की परेशानी को, दुख को, तकलीफ को, दर्द को खुदावंद तेरे यीशु नाम से वो जाती रहे। खुदावंद ये तेरा लहू हमारी नस नस में, रग रग में खुदावंद खुदा, जहाँ कहीं भी दुश्मन ने बंद बांधे हुए हैं, जहाँ कहीं भी बीमारी की सूरत में, जहाँ कहीं भी उसने ज़हनी परेशानी की सूरत में, डिप्रेशन की सूरत में खुदावंद खुदा उसने बंधन बांधे हुए हैं, आज जब हम तेरे इस लहू को पिए तो वो सारे बंधन, वो सारी जंजीरें टूटती जाएं यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। और खुदावंद बदन में जहाँ कहीं भी कोई बीमारी है खुदावंद यीशु के नाम से जब हम इस रोटी को लेते हैं तो खुदावंद तू मुकम्मल शिफा देना खुदावंद खुदा, हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से खुदावंद यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी, दुख, तकलीफ, दर्दें यीशु के नाम से जाती रहें, और खुदावंद हम मुकम्मल तौर पर खुशी, शादमानी को, शिफा को इस रोटी और इस पानी को जब लेते हैं तो रिसीव करें यीशु के नाम से, हमारे घरों के ऊपर हमारे बदनों के ऊपर खुदावंद तेरा मसा जो है हमेशा छाए रहे, तेरे फरिश्ते हमारे चगिर्द हमेशा पहरा देते रहे, और खुदावंद खुदा हम तुझ में रोज बरोज आगे बढ़ते जाए, हम रोज बरोज तुझ में व्यस्त होते जाएं, तुझसे जुड़ते जाएं खुदा खुदा, और हम मरते जाए और तू हमारी जिंदगियों में जिंदा होता जाए, और हम कसरत की जिंदगी को हासिल करें। यीशु के नाम से इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से इस रोटी को लें और इस पानी को पिएं, जो अब खुदा यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया पानी और रोटी।
खुदावंद यीशु मसीह के बदन में तब्दील हो गई है। हालेलुया। आज हम जो 33 चैप्टर है उसी को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ माया है और बापा है। अम, जो हमने कल मेरे हाल 9 आयत तक पढ़ा है, तो हमारी बात जो थी वो तकरीबन महल 7 आयत तक हुई, और वो भी हमने आधी बात की थी, है ना? तो इसलिए आज हम आगे वर्सेस नहीं पढ़ेंगे, उसी को आगे लेके चलेंगे। तो हमने कल सीखा था, मूसा के बारे में हमने बातचीत की थी, और हमने जो याकूब का घराना था या इसराइल उसके बारे में थोड़ा सा सीखा था, है ना? कि याकूब के 12 बेटे थे और उसके नाम हमने पढ़े थे, और उनकी जो माएँ थी, यानी उनकी 4 माएँ थी, वो हमने थोड़ा सा देखा था। इब्राहिम की ये औलाद है ना? तो इसके बारे में हमने सीखा था कि 6 बेटे जो थे वो लिया के थे, और एक बेटी थी उनकी साथ में, यानी जो लिया से पैदा हुए थे, और उसकी जो लौंडी थी, उसकी जो नौकर थी जुल्फा, उसमें से भी 2 बेटे पैदा हुए थे। और फिर हमने सीखा कि जो राखल थी, 2 बेटे उससे पैदा हुए थे, है ना? और उसकी जो लौंडी थी बिल्हा, 2 बेटे उससे पैदा हुए थे, है ना? तो इस तरह याकूब के 12 बेटे थे, है ना? और तो यही जो 12 कबीले थे या 12 बेटे जो थे, इसको हम कहते हैं इसराइल, बनी इसराइल। यानी याकूब जिसका नाम जो था खुदावंद ने तब्दील कर दिया था और उसका नाम इसराइल रखा था, है ना? ये हमने थोड़ा सा कल सीखा था कि याकूब का नाम जो था वो इसराइल रखा था खुदा ने, इसलिए हम इसको इसराइल कहते हैं, जो कौम है। क्योंकि याकूब से आगे जो कह लें कि नस्ल थी या चली थी, और याकूब जो था वो इब्राहिम का पोता था, है ना? और फिर हमने थोड़ा सा सीखा था कि लावी और यहूदा, यानी जो तीसरे नंबर पर याकूब का बेटा था लावी, उसका हमने थोड़ा सीखा नहीं था। हमने यहूदा पे थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि हमने इस चैप्टर में देखा कि जो मूसा है वो एक बाप की तरह कह लें, इन 12 कबीलों को या इन 12 बेटों को बरकत जो है वो दे रहा है। तो उसने तरतीब कुछ इस तरह रखी कि पहले रोबन था और उसके बाद यहूदा और फिर लावी, है ना? तो फिर हम इस तरतीब से ही थोड़ा सा सीख रहे हैं कि पहला जो है रोबन के बारे में हमने थोड़ा सीखा कि उसको उसने बरकत दी कि ये जीता रहे, मर ना जाए, है ना? और हमने देखा कि क्यों अ, जो मूसा था उसने ये कहा था, है ना? कि पीछे उसने वो गुनाह जो था किया हुआ था कि उसने अपनी ये जो बाप की बीवी थी अ, जुल्फा, है ना? इसके साथ उसने कह लें अ, हम बिस्तरी की थी, हरामकारी की थी, या कह लें उसके साथ उसने सेक्स किया था। तो इस वजह से उसको ये बरकत कह लें कि, और फिर हमने सीखा था कि अ, क्योंकि वो बेसबात था, यानी वो मुसलसल जैसे कह लें गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहा था, सही तरीके से खुदावंद के साथ चल नहीं रहा था, इस वजह से और उसने ये नहीं कहीं देखा कि माफ़ी माँगी, इस वजह से वो अ, कह लें कि मूसा ने दुआ की
یا اس کو برکت دی کہ یہ جیتا رہے، کیونکہ وہ مسلسل کہہ لیں اسی میں یا زندگی جو ہے کہہ لیں گزار رہا تھا، تو اس لیے اس نے دعا دی کہ یہ جیتا رہے اور اس کے لوگ جو ہیں وہ کم ہی ہوں، وہ تھوڑے ہی ہوں، تو بھی اس کے آدمی تھوڑے ہی ہوں، ہے نا؟ یہ ہم نے روبن کے بارے میں سیکھا تھا، ہے نا؟ تو پھر ہم نے دیکھا تھا تھوڑا سا یہودا کے بارے میں کہ یہودا نے جو کہ چوتھے نمبر پر یعقوب کا بیٹا آتا ہے، لیکن جب موسیٰ نے برکت دی تو وہ یہ دوسرے نمبر پہ اس کو برکت دے رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ یہودا جو تھا، اس کا جو چھوٹا بھائی تھا یوسف، جب وہ اس کو انہوں نے سارے بھائیوں نے مل کے پلان بنایا کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے کیا لیں جلتے تھے، جالس کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے باپ کا بڑا پیارا تھا یا خداوند کے ساتھ اس کا بڑا گہرا رشتہ تھا اور یہ سارے بھائی اس سے جلتے تھے، ہے نا؟ اور انہوں نے اس کو مارنے کا پلان بنایا، لیکن یہودا نے کہا کہ اس کو مارو نہ، اس کا ہم خون نہ کریں، بلکہ اس کو ہم بیچ دیتے ہیں اسرائیلیوں کے آگے، ہے نا؟ تو اس لیے یہ اس نے یوسف کے ساتھ جو کیا، یہ جو 11 نمبر پہ آ رہا ہے نا، میرا خیال آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہوگا تو اس نے کہہ لیں کہ اس طرح اس کی، لیکن یہ کیا میں کہوں گی کہ اس برے پلان میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا اور اس نے اس کو بیچنے کا کہا، لیکن اس کا کہہ لیں ہم نے سیکھا کہ جب مصر میں سوری اسرائیل اس میں ملک کنعان میں کال پڑا، تو جب یہ خوراک لینے مصر میں گئے تو وہاں پہ یوسف جو تھا وہ تب تک حاکم جو تھا بن گیا ہوا تھا، یا کہہ لیں ہم کیونکہ دوسرے نمبر پہ تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ وزیر تھا، وزیر اعظم تھا دوسرے نمبر کا حاکم تھا وہاں پہ، ہے نا؟ تو یہ خوراک لینے جب گئے تو یوسف نے ایک کہلیں پلان بنایا، کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا تھا، ہے نا؟ اور یوسف نے ایسا پلان بنایا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو جو بنیامین تھا اس کو ملنا چاہتا تھا، اور اس نے کہا کہ اس کو لے کے آؤ، ہے نا؟ تو جب یہ لے کے جانے لگے تو جو باپ یعقوب تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بنیامین کو لے کے جائیں وہ، ہے نا؟ تو یہودا جو تھا، جو بیٹا تھا یعقوب کا، وہ اس کا ضامن بنا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر میں اس کو واپس نہ لے کے آؤں تو میرا بیٹا جو ہے وہ یعنی وہ تجھے دے دے گا، یہ اس طرح اس نے کہا کہ وہ ضامن جو ہے بنا یہودا جو تھا۔ اور پھر یوسف نے بھی جب اس کو بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہا تو تب بھی یہودا جو تھا اپنے سارے بھائیوں میں سے نکل کے کہہ لے کہ آگے کھڑا ہو گیا ایک لیڈر کی طرح، تو اس نے کہا کہ میں تیرا نوکر بن جاتا ہوں، تو مجھے قید کر لے لیکن میرے اس بھائی کو جانے دے، ہے نا؟ تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک کہہ لیں اس کی معافی کا، یا یہ اس نے جو کچھ بھی ایکٹ کیا یہ اس نے جو کچھ پہلے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، یعنی اس کو بیچا تھا کہہ لیں، تو وہ یہاں پہ آ کے اس نے اس کا کہہ لیں جو بدلہ تھا یا اس کا جو وہ اس نے دے دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں تو اس کو چھوڑ دے اور تو مجھے نوکر بنا لے، ہے نا؟ تو یہ کہہ لیں کہ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ اس نے ہمیں بچا لیا، لیکن اپنے آپ کو جیسے کہہ لیں اپنا خون دے کے شیطان سے کہہ لیں کہ ہمیں بچا لیا، ہمیں چھڑا لیا۔ تو یہ ایک کریکٹر جو کہہ لیں کہ ہم مسیحیوں میں ہونا چاہیے، یہ ہم نے کل یہاں تک تھوڑی سی بات کی تھی، ہے نا؟ اور آج ہم اسی کو تھوڑا سا جو اگلا حصہ ہے اس کا یہودا کے بارے میں ہی سیکھیں گے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم پیدائش کی کتاب اس کا
जो 38 चैप्टर है। माया आप निकालना, जेनेसिस। माया है हमारे साथ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ है वो, हाँ हाँ आ माया रही है। जो पहली किताब है जेनेसिस, उसका 38 चैप्टर। 38 चैप्टर, वो आप मेरा पूरा ही पढ़ें ताकि आपको जिनको शायद भूल गई हो स्टोरी, तो हम पूरा ही यहूदा जो है, ये जो चौथे नंबर पे है, याकूब का बेटा, क्या क्या उसने किया, तो हम पूरी ही इसकी जैसे कहना स्टोरी जो है कि किस तरह इसने यहाँ पे भी एक मैं कहूँगी कि बुरा काम किया, लेकिन उसने इकरार किया अपने मुंह से कि मैंने ये ठीक नहीं किया, है ना। तो इसलिए हमें इसके करैक्टर में ये मिलता है कि हमें अपनी गलती को मानना चाहिए, इकरार करना चाहिए और दूसरों को अपने से बेहतर जानना चाहिए। तो ये एक इस पूरा अगर चैप्टर हम पढ़ेंगे तो फिर हमें ज्यादा समझ आएगी। जी, आप 38 जो चैप्टर है पैदाइश की किताब, वो पूरा ही आप पढ़ना। निकाली। जी, पढ़ो आप। प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा ने अपने भाइयों के पास से चला गया और हिराम नाम एक अब्दुल वासी पुरुष के पास डेरा किया। यह यहूदा ने सुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वो फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा गजीबा में रहता था। और यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेख में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने अनून से कहा, अपनी भाऊजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी न ठहरेगी, सो ऐसा हुआ कि जब वो अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्यु गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उसे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा की बेटी रहे। सो तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सुआ की बेटी थी सो मर गई। फिर यहूदा शोक से छुटकर अपने मित्र हीरा अब्दुल्लामासी समेत अपनी भेड़ बकरियों और ऊन कतरने के लिए तिम्नात को गया। और तामर को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनम नगर के फाटक के पास जो तिम्ना के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वो अपना मुंह ढांपे हुए थी, और वो मार्ग से उसकी ओर फिरा
और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वो उसकी बहू है। और वो कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू मेरे पास कुछ रहने रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहने रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वो उससे गर्भवती हुई। तब वो उठ कर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लम वासी के हाथ भेज दिया कि वे रहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वो स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वे देवदासी जो एनम के मार्ग में एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यह तो कोई देवदासी न थी। सो उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वो नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यह तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वो बंधक उसके पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुझ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा बेच दिया, पर वो तुझे नहीं मिली। और 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वो व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वो जलाई जाए। तब उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं है, उसी से मैं गर्भवती हुई। फिर उसने यह भी कहलाया कि पहचान तो सही कि यह मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र शेला को न ब्याह दिया और उसने उससे फिर कभी प्रसन्न न किया। तब उसके जनने का समय आया, तब ये जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वो जनने लगी, तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और दह ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया कि पहले ये उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दह ने तो क्यों बरबस निकल आया है, इसलिए उसका नाम परेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बांधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जैर रखा गया। आमीन। आमीन जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माया, खुदा आपको बरकत है। ये सारा चैप्टर आपने सुना, पढ़ा, तो इस चैप्टर में बहुत सारी, जैसे कह लें, टॉपिक या बहुत सारी बातें हमें पता चलेंगी या चल रही हैं, लेकिन क्योंकि हमारा या मेरा कह लें इस वक्त फोकस है सिर्फ कि यहूदा ने क्या किया जो चौथे नंबर पर याकूब का बेटा था, है ना, और यानी क्या बुरा किया और क्या अच्छा किया, ये हमने इसमें से यही देखना है ना, कि उसने अपनी जो बहू थी उसके साथ एक किस्म का कह लें वादा किया था कि जो छोटा बेटा है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूंगा, है ना, तुझे उसकी बीवी बना दूंगा। लेकिन वो शायद डरता था या उसने यानी किस वजह से वो बेटा उसका बड़ा भी हो गया, लेकिन उसने उसके साथ तमर जो थी उसकी बहू उसकी शादी नहीं की, है ना।
और फिर जो तमर थी उसने ये सारा जैसे कह लें कि प्लान बनाया, जो भी आपने सुना कि उसने इस तरीके से अपना जो सुसर था, है ना, उसके साथ यानी ये सब कुछ किया और उसका रहन जो था वो रख लिया है। और यहाँ पे जो रवैया मैं असल में जिस पे बात करना चाहती हूँ कि यहूदा ने असल में क्या कहा, है ना? उसने कहा कि ये मुझसे ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू में कि वो सादक है यानी रास्तबाज़ है। यानी मैंने तो उसके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन उसने जो कुछ मैंने बोला हुआ था वो इंतज़ार कर रही थी या वो बैठी रही, वो जैसा मैंने उसको बोला था कि बेवा का लिबास जैसे कह लें पहन के बैठी रहे अपने माँ-बाप के घर में, उसने तो उस सारी बातों पे अमल किया। लेकिन मैंने जो कुछ कहा था, मैं उन सारी बातों पे कायम नहीं रह सका, है ना? तो इसलिए उसने जो कुछ किया, तमर जो उसकी बहू थी उसने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा सादक है। वो मुझसे ज़्यादा रास्तबाज़ है ना? तो ये एक बात जो कह लें मैं कहूँगी कि इसको जानने के लिए मैंने कहा कि हम पूरी जो एक कह लें स्टोरी है या जो कुछ दोनों ने एक-दूसरे के साथ किया, ये किस वजह से किया, क्यों किया और यहूदा का रवैया कैसा था? यानी पहले उसने गलती की, लेकिन फिर उसने गलती को माना और उसको सुधारा और लिखा है कि उसके बाद उसने कभी अ जो महज़ 26 आयत है उसमें लिखा हुआ तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज़्यादा सादक है क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सेला से नहीं ब्याहा है और वो फिर कभी उसके पास ना गया। ये एक जो आयत है ये कह लें हमारे ऊपर जैसे कह लें फिट होती है या होनी चाहिए कि हमने जो गलती की है हम उसका इकरार करें और फिर उसको सुधारने की कोशिश करें। यानी उसने गलती की और दोबारा वो काम नहीं किया। दोबारा वो अपनी बहू के पास नहीं गया, है ना? वो अनजाने में हो गया था, उसने किया उसकी अपनी बहू के साथ। लेकिन उसने उसके बाद उसको लिखा है कि कभी नहीं देखा। पहले उसने अपनी गलती का इकरार किया, है ना? ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे जो 26 आयत है। कि उसने इकरार किया और फिर उसने यानी उस औरत को या अपनी बहू को कहा कि ये ज़्यादा सादक है ना? उसने अपने आप को छोटा बनाया और अपनी बहू को कह लें कि अ, अपने से बेहतर जाना। तो ये एक रवैया, ये एक नेचर जो है हमारे अंदर होना चाहिए कि हम दूसरों को अपने से बेहतर जानें और अपनी गलती का इकरार करें और फिर अगर हमें पता चल गया ये हमने गलती की है तो दोबारा ना करें। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से क्या कहा था जिसको गुनाह के टाइम में पकड़ा गया था। ज़िनाकारी है। खुदावंद ने हाँ जी, आ गई सुमिता। हाँ, मैं हाँ कर रही जी, हूँ। ओके। खुदावंद ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, है ना? हुँ, लेकिन हुँ, उसने साथ कहा कि जा फिर गुनाह ना हाँ, करें, हुँ, है ना? तो हुँ, बिल्कुल यही देखें नेचर ये यहूदा में हमें नज़र आ रही है। उसने हुँ, पहले अपनी गलती का इकरार किया और फिर अपने से बेहतर उसको जाना, अपनी बहू को और फिर उसने उसको लिखा है कि दोबारा कभी उसके पास नहीं गया, है ना? हुँ, तो ये वाली एक नेचर जो है, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। हम जो मसीही हैं, हम जो जिस तरह हमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को तुमसे इस तरह दूर कर देता हूँ, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है दूर है। और कभी याद नहीं करता खुदावंद हुँ, यीशु मसीह। तो हुँ, यही एक मैं कहूँगी कि ये नेचर, ये एक रवैया जो है, एक बिहेवियर जो है, वो यहूदा की ज़िंदगी में हमें मिलता है। तो इसलिए ये यहूदा को देखे जो मूसा था, उसने भी बरकत दी और उसने कहा अ, वो अपने ही आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके दुश्मनों के मुकाबले में उसका मददगार होगा। यानी खुदावंद जो हाँ, है उसका क्या होगा? मददगार मददगार। होगा और खुदावंद जो है उसकी तरफ से लड़ेगा, है ना? हुँ, और फिर हुँ, हम देखते हैं ये तो यानी जो
मूसा ने उसको बरकत दी, है ना। हम्म, तो जो बरकत उसको उसके बाप ने बरकत दी थी, याकूब ने, वो किसी को याद है? यहूदा को क्या बरकत दी थी? देख लेते किसी हैं। को याद है? मेरा ख्याल यहाँ है सबको याद होगा। वफा, हम्म, 49 चैप्टर निकालें पैदाइश का। वही निकाल लेने कितनी है, देख लेते हाँ जी, 49 निकल है। तो हम्म, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ला 8 आयत से आप पढ़ना शुरू करें सुमेना, चले। 8 हाथ से। हाँ हाँ जी। हम्म, पैदाइश की किताब उसका हाँ पैदाइश 49 की फोटो चैप्टर, क्या यार मेरे, हाँ वो हाँ मैंने जी, देख ली थी दूसरा। उसकी 8 आयत से है। 8 हाथ से है ये रे। ऐ यहूदा तेरे भाई तेरी मदद करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की लात तेरे आगे सुरंग होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है, ऐ मेरे बेटे तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छुड़ाए। यहूदा से संतत नहीं छूटेगी, पर ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मकूफ होगा, जब तक शलूश न आए और कौमें हालेलुया, उसकी मतीन होंगी। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हम्म, प्रेज गॉड, है ना। ये जो हम्म, 10 आयत है, हम्म, असल में हम थोड़ी इस पे बात करेंगे कि हम्म, याकूब ने उसको बरकत दी थी कि उससे क्या है, सल्तनत नहीं नहीं छूटेगी, छूटेगी। यानी हम्म, बादशाही उसकी नस्ल से कभी खत्म नहीं होगी। हम्म, तो हम देखते हैं कि हमने कल थोड़ी सी देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदा के कबीले में से है ना। हम्म, तो मेरा ख्याल है आप सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी टाइम तो हमारा हो गया, लेकिन बस हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज भी हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन जिनको ज्यादा मैं कहूँ कि नहीं पता, सुमीना आप मत्ती की इंजील निकालना, ओके। जिससे हमें पता चलता है पहला जो चैप्टर है हम्म, मत्ती पहला बाब, उसकी पहली ओके। ही आयत आप देखना कि असल में नस्ल कहाँ से चली, और खुदाम यीशु मसीह का जो हम कह लें नसबनामा है देखते हैं। तो हाँ जी, पढ़ना पहली आयत मत्ती से, का पहले ऐसे पहली आयत यीशु से। मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से यकूब पैदा हुआ, और यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारस और जारा तुमर से पैदा हाँ हुए। जी, बस एक मिनट। हम्म, हाँ जी, हम्म, ये हमने देखा कि जो अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा 38 हम्म, चैप्टर, उसमें हमने देखा कि जो तमर थी, जो उसकी हम्म, बहू थी, उससे 2 हम्म, बेटे पैदा हुए थे, अभी हमने हम्म, पढ़ा। तो ये हम्म, उसी से देखे आगे नस्ल चली, फारस हम्म, और जाहर। यहाँ हाँ तो यहूदा के जो बेटे थे ये दोनों, जो तमर से पैदा हुए थे, तुमर से पैदा हुए थे। उससे आगे नस्ल पैदा हुई। हम्म, उससे हम आगे कहेंगे कि ये सारा अब बस सारे नाम नहीं हम पढ़ते, हम्म, लेकिन आप बस आखिरी आयत जो है 12 आयत पढ़ना, जिससे क्या हुआ, यूसुफ हम्म, पैदा हुआ जो हुआ। मुकद्दसा मरियम का हस्बैंड हम्म, था। वो गिरफ्तार सुमीना, होकर बाइबल, हाँ जी, वो गिरफ्तार होकर बाइबल जाने के बाद यकुनिया से साल्ती एलिया पैदा हुआ, और साल्ती एलिया से जरबाबल पैदा हुआ, और जरबाबल 16 से आयत पढ़ना। 16 आए थे। ओके। अच्छा। हम्म, और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ, और ये उस मरियम का शोर था जिससे यूसुफ यसु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। हाँ जी, हम्म, तो हमने देखा कि यानी ये खुदाम यीशु मसीह का हम्म, है एक कह लें नसबनामा, घराना। कि वो इब्ने दाऊद है, वो हम्म, इब्राहिम की नस्ल से है। और हम्म, फिर हमने देखा कि याकूब से यहूदा पैदा हुआ। तो देखिए हम्म, बाकी भी बेटे उसी से पैदा हुए, लेकिन यहूदा का क्यों नाम लिया गया? क्योंकि हम्म, यहूदा को याकूब ने ये बरकत दी थी कि इससे बादशाही कभी खत्म नहीं होगी। होगी। इसलिए देखें कि बाकी भी 12 बेटे यानी 11 बेटे हम्म, थे, लेकिन हम्म, यहाँ पे जब हम मसीह का नसबनामा देखते हैं तो उसमें हम्म, यहूदा का नाम आता है ना। हम्म, और यहूदा के आगे जो बेटे थे उससे नस्ल चली थी। नस्ल चली। तो इसलिए जो हम्म, खुदावंद यीशु मसीह थे वो
यानी यहूदा की नस्ल से पैदा हुए, यानी हाँ, इब्राहिम, दाऊद और हाँ, बाकी ये सारे जो नाम हैं वो हमने नहीं पढ़े, इसहाक हाँ, और याकूब, है ना? लेकिन हाँ, यहूदा को जिसके उसके बाप ने, याकूब ने, इसराइल ने ये बरकत दी थी कि हाँ, तेरी नस्ल से कभी भी बादशाही खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं तो होगी। खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो हाँ, यहूदा के कबीले से पैदा हुए थे और हाँ, अ, बाकी का जो है हम मेरा ख्याल कल जो है पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है काफ़ी हो गया है। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये तो नसबनामा एक दुनियावी तौर पे हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हाँ, इब्राहिम की नस्ल से थे या दाऊद की नस्ल से थे या हाँ, यहूदा की नस्ल में से थे। हाँ, लेकिन लूका की इंजील में हमें पता चलता है कि लूका जो है वो जाके आदम के साथ और खुदा के साथ खुदावंद यीशु मसीह का एक कह लें कि रिश्ता जो है बनाता है ना? तो वो हाँ, हम कल पढ़ेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा लंबा है। तो मैं जैसे कह लें मैं भी और जैसे हम देख रहे हैं कि मूसा ने भी ज़्यादा यहूदा के कबीले को पहले उस पे बातचीत की या उसको बरकत दी। तो मेरा भी जैसे कह लें पूरा जो मैं कहूँगी कि फ़ोकस जो है यहूदा के कबीले के बारे में हम जितना हाँ, कह लें खुदावंद मुझे गाइड कर रहा है या जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि हमें पता चले कि हम रूहानी तौर पे यहूदा के कबीले से हैं और लावियों के कबीले से हैं, लेकिन ये सब कुछ रूहानी तौर पे हो रहा है ना? हाँ, कोई भी अपने आप को जिस्मानी तौर पे जाके बाहर शोर ना डालना शुरू कर दे कि हम शायद यहूदा के हैं कबीले में से और लावियों के कबीले से, है ना? तो लेकिन ये सब कुछ रूहानी तौर पे हो रहा है, तो हम इनको थोड़ा-थोड़ा जितना मुझे थोड़ी समझ है या जितना मैं जानती हूँ, हम इनको आयतों के ज़रिए, वर्सेस के ज़रिए कल भी इस पे बात करेंगे और जैसे कह लें कि हो सकता है कि आगे भी इसको मैं लेके चलूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा जो फ़ोकस होगा हम यहूदा के बारे में और लावियों का जो कबीला है हम अब किस तरह लावी हैं हम अब किस तरह यहूदी कौम जो है उसके साथ रिलेटेड हैं और खुदाम यीशु मसीह के साथ और हमें क्या करना चाहिए, है ना? बाकी भी ये देखे सारे बेटे हैं और हाँ, ये सभी मिस्र में से जो मूसा था वो निकाल के ले आया था इनको, है ना? हाँ, हाँ, लेकिन यही क्यों 2 बेटे थे जिनको वो ख़ास जो बरकत थी वो मिली थी। हालाँकि हाँ, बाकी बेटों को भी बरकत मिली थी, बाकियों को भी हमने देखा कि याकूब ने भी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एरिया में उनको जो तो ब्लेस किया था, बरकत दी थी, है ना? हाँ, हाँ, लेकिन जो बादशाही की बात है, जो कहानत की बात होती है, तो वो सिर्फ़ ये 2 बेटों को दी, लावियों को और यहूदा को दी थी, है ना? हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हम आज वहाँ तक हम नहीं पहुँचे कि बाकी के इस्राएली जो थे वो यहाँ तक तो आते थे, यहाँ पे कुर्बानियाँ जहाँ पे होती हैं, ये जहाँ पे कह लेंगे आपको शायद बैल बैल वगैरह नज़र आ रहे हैं, है ना? कि बाकी की इस्राएली कौम जो थी यहाँ तक तो आ सकती थी। यहाँ तक वो कुर्बानियाँ चढ़ाने या मतलब बाकी के उस कामों के लिए आती थी। लेकिन जो यहाँ अंदर तक था, वो सिर्फ़ लावी ही जा सकते थे। जो मूसा था वो भी लावियों के यानी कबीले से था या लावी का आगे नस्ल से था और जो हारून था जो सरदार काहिन था, वो भी लावियों में से था और खुदावंद ने जिन सारी खिदमत जो थी यानी यहाँ पे जो आते थे काहिन और वो भी सारा जो था लावियों का कबीला था या लावियों की नस्ल जो थी वो सिर्फ आगे यहाँ तक खिदमत कर सकती थी। तो अब अगर हम भी उस तरह के हमारा रवैया है जैसे कि हमने थोड़ा उसका यहूदा का देखा, तब हम इस तरह जा सकते हैं या लावियों के बारे में आगे हम कल देखेंगे, सीखेंगे कि उनको खुदा ने क्यों चुना था? यानी क्यों खुदा ने उनको इतनी जैसे कह लें ऊँचा जो दर्जा था, वो दिया कि वो ही अहद के संदूक के पास जा सकते थे। वहाँ पे वो जो खिदमत है वो कर सकते थे। बाकी के जो 12 बेटे थे, वो भी उसके बेटे थे।
याकूब के, है ना? बाकियों को भी उसने बरकत दी, लेकिन ये वाली जो बरकत है ये क्यों सिर्फ लावियों को मिली और यहूदा को मिली, है ना? तो ये हम थोड़ा-सा कल इस पे बात और ज़्यादा थोड़ी-सी कह लें डिटेल से कह लें करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो हमें जो है यहूदा की तरह हमारी जो नेचर है वो होनी चाहिए कि अपने गुनाहों का इकरार करें और अपनी गलती को मानें और जैसे कह लें तौबा करें और फिर वो वापस काम जो है वो ना करें। आज का जो मैं कहूँगी कि हमने यहूदा की जो बेटा था उसकी नेचर से या उसकी नस्ल से हमने ये सीखा। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे कि और मुझे भी कि हम इस तरह की नेचर जो है जो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती है, वही नेचर हमारे अंदर पैदा हो, ताकि हम खुदावंद की नज़र में कह लें मकबूल नज़र ठहरें। हम गुनाह में मुसलसल ज़िंदगी ना गुज़ारें, जिस तरह के हम कहते हैं कि देख रहे हैं कि उसके लिए सिर्फ़ मूसा ने यही बरकत माँगी कि ये जीता रहे, यानी सिर्फ़ इसकी जान जो है, इसकी रूह जो है बच जाए, यानी ये उस में दाखिल हो जाए। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे कि हम यहूदा की नेचर जो है उस उसकी नेचर जो या उसका मिजाज जो है जो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है वो हमारी जिंदगी में काम करे। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू सुरैया जी। आज थोड़ा टाइम कम था तो इसलिए हम सिर्फ इतना ही कर सके। जी सुरैया। जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सारे हालेलुया। बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। यस यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन का जाग शुक्र हो। जाग रहे हैं। हाँ जी जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ और उसकी सताइश हो कि हमारा खुदा हमें रोज रोज सिखा रहा है कि हमने कैसे बढ़ना है, हमने कैसे चलना है, हमने कैसे एहतियात से चलना है, कैसे एहतियात से काम करना है, कैसे हमने जिस्मानी तौर पर जिस्म में रहते हुए हमने कैसे कैसे चलना है। सो खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं आज के सारे इस करैक्टर के लिए, यहूदा के लिए और खास तौर पर यहूदा के करैक्टर्स के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। खुदावन ने हम पर ये भेद यहाँ किया, उसके हम तीनों बातों के लिए कि वो अपनी गलती का इकरार करता है और वो अपने से बेहतर दूसरे को जानता है, दूसरे को रास्तबाज समझता है। हम इस बात का भी इकरार करेंगे अपनी जिंदगी में। और तीसरी बात कि वो फिर कभी उस गलती को नहीं करता है जिसको उसने छोड़ दिया। वो फिर उस दलदल में नहीं जा रहा है, वो फिर उस गुनाह में नहीं जा रहा है, वो फिर उस गुनाह में मुलव्वस नहीं हो रहा है जिसने एक दफा छोड़ दिया है। तो आए हम इन तीनों बातों पर गौर करेंगे कि एक तो हमने इकरार करना और दूसरा हमने दूसरों को अपने से बेहतर जानना है और तीसरा ये कि हमने अपनी जो गलत काम, जो गलत रवैया हम छोड़ देते हैं तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हमने पीछे नहीं जाना बल्कि हमने बैक स्लाइडर नहीं होना बल्कि हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। और यहूदा का जो करैक्टर है हम इसको अपनी जिंदगी में चाहेंगे कि खुदावन हमारे ग्रुप में, हमारी जिंदगियों में कसरत से अंडेले और खुदावन ताकि हम भी उसके उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सके। और यस लड़े हालेलुया। लावियों की तरह जिस तरह वो अंदर जाते थे, खिदमत करते थे, कहानत करते थे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदावंद का शुक्र अदा करें। यस लॉर्ड, आज हमारी ये डिजायर होनी चाहिए, आज हमारी ये दुआ होनी चाहिए, आज हमारी ये पहली रिक्वेस्ट होनी चाहिए खुदा के आगे कि क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये एक खुदावन यीशु मसीह ने हमें पैटर्न दिया है दुआ मांगने का, दुआ करने का तरीका कार है। पहला जो हमें बताया जा रहा है कि खुदा कह रहा है कि मांगो। ये वो चीज, ये खुदा
खुदावन वो बात कर रहा है कि जो हम जिस्म में रहते हुए जो जिन चीजों की हमें जरूरत होती है कि मांगो तुमको दे जाएगा, खुदा उस बात का हमसे वादा कर रहा है कि अगर तुम मुझसे मांगते हो कोई ऐसी चीजें जो दुनिया में रहते हो तुम्हें जरूरत है तो मैं वो भी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे बढ़कर कि जब तुम ढूंढते हो, ढूंढना हमने किसको है? खुदा को ढूंढना है, हमने उसको ढूंढना है, हमने अपने स्पिरिचुअली लेवल को इंक्रीज करना है, हमने अपने स्पिरिचुअली जो कदो काट है उसको हमने बढ़ाना है, हमने अपने रूहानी लेवल को बढ़ाना है। हालेलुया, हमने उसकी तलाश करनी है, हमने उस मोती की तलाश करनी है जिसके बारे में वो उस सिक्के की तलाश करनी है जिसके बारे में कलाम भी हमें बताता है कि जिसका सिक्का गुम हो जाता है और वो जब तक उसको ढूंढ नहीं लेती है तो वो तसल्ली नहीं पाती है, वो इत्मीनान नहीं पाती है, और जब ढूंढ लेती है तो वो शादमानी करती है, वो खुश होती है। तो आज हमें भी जब हमें चाहिए कि हम अपनी जो दुनियावी बातों के साथ, दुनियावी दुआओं के साथ, जिस्मानी जरूरियात के साथ हम खुदा को तरजीह दें, हम खुदा को ढूंढे और उसके उस एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी में का हिस्सा ताकि हम उसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में जान सके, महसूस कर सके। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करें उसके कलाम के लिए, उसकी बातों के लिए। आज दुआ करेंगे कि खुदावन आज है बाप मैं पहले जैसे ना रहूं, आज है खुदावन मेरी रूह बदन जान है बाप यकसा तब्दील हो जाए। खुदावन वैसा ना हो कि जिस तरह से रोबन है बाप रह गया, सिर्फ उसकी रूह ही बची है, और या सरदान बल्कि खुदावन तू चाहता है कि हमारी रूह बदन और जान है बाप खुदावन तेरे आने तक महफूज रहे। आए उससे दुआ करके खुदावन मैं रूह बदन और जान समेत बाप तेरे साथ उठाई जाऊंगा बाप, मैं तेरे खुदावन रूह बदन और जान साथ बाप बचाई जाऊं यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल। आए खुदावन, आए इकरार करें और खुदावन से कहें कि खुदावन मैं खुदावन बाप मैं अपने आप को खुदावन पीछे करूं, मैं अपने आप को पीछे करती, मैं अपने आप को जीरो समझती, मैं अपने आप को कम कर समझती, मैं अपने आप को अदना समझती, मैं अपने आप को जीरो करती हूँ, और खुदावन मैं अपने से दूसरों को ज्यादा तरजीह देती हूँ, मैं अपने आप से दूसरों को ज्यादा अहमियत देती हूँ, मैं अपने आप से ज्यादा दूसरों को ज्यादा काबिल समझती हूँ, मैं अपने आप से ज्यादा दूसरों को ऊपर करती हूँ, मैं दूसरों को तरजीह देती हूँ। हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम से आए इस स्पिरिट को ले अपने अंदर, आए इस गिफ्ट को ले अपने अंदर कि आए खुदावन तू मुझे, मैं दूसरों को अपने से कम तर ना समझूं, बल्कि मैं दूसरों को अपने से ज्यादा इज्जत दूं, ज्यादा ऑनर करूं यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, यस और आए यीशु के नाम से इन तमाम 3 पॉइंट पर हम गौर करें और दुआ करें कि खुदावन तो मुझे मेरे इस एरिया में अगर मैंने कहीं किसी को नीचा किया है, मैंने किसी को कम कर जाना है, तो खुदावन तो मुझे माफ कर यीशु मसीह के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, यीशु के नाम से बाप। ये रवैया मेरी जिंदगी में से अगर है भी तो बाप तेरे यीशु नाम से अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप, यीशु के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, ताकि हम तेरे कद के अंदर तक पहुंचे यीशु के नाम से बाप। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावन, इस खुदावन बाप इस बात को खुदावन, इस करैक्टर को खुदावन जो बाप यहूदा के अंदर था बाप हम अपने ग्रुप में मांगते हैं यीशु के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ हमारे बच्चों में, हमारे अपने आप में, हमारी जिंदगी में बाप खुदावन ये करैक्टर जड़ पकड़ ले यीशु मसीह के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप। यस, पर हम दूसरों को इज्जत दे, दूसरों को ऑनर करे बाप, दूसरों को बाप खुदावन रिस्पेक्ट करे यीशु के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से बाप। तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ होते इस्ताश करते हैं। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, रोज और जिये शिंदर बेरज़ी यीशु के नाम से बाप, हालेलुया, और रोज और जिये शिंदर बेरज़ी यीशु के नाम से बाप। हम अपने आप को ऊंचा ना करें, हम अपने आप को रासबाज बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि वो तो कहता है कि हमारे जो किरदार, हमारे जो अमाल है वो गंदी धज्जियों के मानंद है, लेकिन खुदावन का रहम और फजल के वसीले से
हम रासबाज ठहराए जाते हैं, हम पाक बनते हैं। और यस फादर गॉड, हम अपने किसी उस पर पकड़ नहीं कर सकते, किसी बात पर, किसी भी ऐसे काम पर पकड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदावन हमें सब कुछ बनाने पर कादिर है। आए उस खुदा की तरफ नजरें उठाएं जिसके हाथ में हमारी जिंदगी है, जिसके हाथ में हमारी सांसें हैं, जिसके हाथ में हमारी किताब है, हमारे अमलों की किताब है। और यस और हालेलुया, रोज और ज़ियर बेरे बेरे ज़ियर और शिंदर बारी ज़ियर बेरे और रोज और ज़ेरे बेरे बेरे ज़ी शिंदर रोज और ज़ेरे शिंदर बेरे ज़ेरी। यस माय लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन हमारे हाथों में तेरी जिंदगी है बाप, खुदावन हमारे हाथ है तेरे हाथों की, खुदावन है बाप, हम तेरे ही हाथों की कारागरी हैं। खुदावन तूने हमें बनाया, तूने हमें शेप दिया है, हम इकरार करते हैं खुदावन बाप तेरा। यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो। ए बाप, हम अपनी गलतियों कोताहियों का बाप इकरार करते हैं। खुदावन जहां कहीं भी बाप बचपन से लेकर आज तक हमसे गलतियां कोताहियां बाप, ना रास्तियां, जिनाकारियां, हरामकारियां, खूनरेजियां बाप, जो हम जुबान से करते हैं, जो हम अपने दावन प्रैक्टिकली करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तमाम बातों का इकरार करते हैं। दावन यस माय लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से बाप, तेरी पाक हुजूरी में बाप, उन तमाम कामों का, उन तमाम बातों का बाप इकरार करते हैं बाप। हम इकरार करते हैं तेरी हुजूरी में बाप कि तू हमें प्यूरिफाई करे, तू हमें सैंक्टिफाई करे, तू हमें धोए है बाप, अपने लहू से, अपने कलाम से धोया बाप, यीशु के नाम से बाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। दावन बचपन से लेकर आज तक बाप, जो भी हमसे गलतियां कोताहियां हुई हैं, दावन तू हमें जानता है, तू हमारे कामों से वाकिफ है बाप। हम तेरे शुक्र, दावन हम तेरे आगे खुली किताब की मानद है, और हम तुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। और यस माय लॉर्ड, क्योंकि हम तेरी आंखें हर एक इंसान को हमें जांचती हैं बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो खुदा है बाप आसमानी, हम तुझे अपना बाप, अपने अब्बा जानते हैं बाप, तेरे पास आते हैं और हम चाहते हैं खुदा तू हमारी गलतियों कोताहियों को माफ करे। और खुदा के खुदावन बाप, हम पहले जैसे ना रहे, यीशु मसीह के नाम से बाप, हमारे गुनाह धुलते चले जाएं तेरे लहू के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से, तेरे हुक्म पर अमल करने के वसीला से, तो तेरे हुक्मों को मानने की वजह से, यीशु के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड, खुदावन जब हम इकरार करते हैं खुदावन बाप, इकरार की दुआ करते हैं खुदावन कि ये काम मैं छोड़ती हूँ, ये काम मैं छोड़ता हूँ, खुदावन वक्त कि हम उसको दोबारा फिर ना करने पाए, यीशु मसीह के नाम से। यस यस फादर गॉड, हालेलुया। रे बेरे जरे जी रे शिंदर बरजी, देख तेरा कलाम कहता है कि हल पर हाथ रखने वाला पीछे ना मुड़े, वो अगर पीछे तब दावन तेरा दिल उससे खुश नहीं होता है, दावन तू उससे खुश नहीं होता है जो बाप पीछे देखता है। ए बाप, आज हम भी ए बाप तेरा आगे मिन्नत करते हैं खुदावन, ए बाप आसमानी के खुदावन, हम अपनी गलतियों पर सोचते ना रहे, या हम खुदावन उन्हीं में उन गलतियों में धंसते ना रहे, दुश्मन हमें उसमें ना फंसाए रहे, बल्कि तेरे रहम और फजल पर निगाह करते हुए बाप हम आगे बढ़े, और बाप हम उस गुनाह को फिर ना करने का इकरार करें यीशु मसीह के नाम से। ए बाप आसमानी, हम सब मिलकर हमारा पूरा ग्रुप है बाप, इकरार की दाऊन है बाप चाहता है, दाऊन हम दुआ करते हैं खुदावन, जिन कामों को हम छोड़ने का ऐहद करते हैं, जिन बातों को हम छोड़ने की दुआ करते हैं तेरी हुजूरी में, दाऊन क्या बाप हम प्यूरिफिकेशन दाऊन बख्श दे, क्या बाप हम उस पे दोबारा ना धंसे, हम उस पे दोबारा ना जाए, जिस तौर से बाप आसमानी है या बाप खुदा बाप यहूदा बाप इकरार करता है, यहूदा बाप कभी उस औरत के पास ना गया, हमने पढ़ा है, तूने हमें सुनाया, हमने तेरे कलाम में से सुना बाप, हमने अपने कानों से सुनाया बाप। और यस फादर गॉड, तेरा शुक्र हो, दान आज बख्श दिया क्या बाप, आज हम भी है बाप दान कभी भी दान उस गुनाह में मुलव्वस ना हो जिनको हमने पहले अब जब छोड़ दिया, या बाप तू हम पर हम अपना रहम, अपना फजल हाथ बनाए रखना, ताकि हम दोबारा उसमें ना मुलव्वस हो। और यीशु मसीह के नाम से बाप, यस यस फादर गॉड तेरा शुक्र हो, ए जलाली पिता तेरा शुक्र हो, ए यहोवा खुदा तेरा शुक्र हो, ए लश्करों के रब तेरा शुक्र हो, ए यहूदा के बब्बर तेरा शुक्र हो। और यस माय लॉर्ड, हालेलुया। हम जो मुकद्दस कौम और शाही कामों का फिरका है, हम में खुदावन अब तूने हमें मुकद्दस कौम ठहराया है, हम तेरे लोग हैं खुदावन, हम तेरी चिरागाह की भेड़ें हैं बाप, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और हम पाक बुलावे के लिए बुलाए गए हैं, तूने हमें पाक बनने के लिए बुलाया है
बाप हम तेरा शुक्रगुजार है बाप, हालेलुया। रोज़ और अज़ीर रे शिंदर बेरे ज़ीरी, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं कि आज खुदा हम बनी इसराइली हैं दाऊन, हम है बाप दाऊन इसराइली हैं दाऊन, हम रूहानी इसराइली हैं बाप, तूने हमें रूहानी इसराइली ठहराया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से बाप। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, तेरे इस टाइटल देने के लिए, तेरे इस मेहरबानी करने के लिए खुदावन, तू हमें रूहानी तौर पर खुदावन रूहानी इसराइल बनाता है खुदावन। वो जिस्मानी थे लेकिन हमें तूने रूहानी तौर पर इसराइली बनाया है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और तेरी सताइश करते हैं। ऐ जलाल के बादशाह रब्बुल फराज इसराइल के कुदूस यहूदा के बब्बर, हम तुझे मुबारक कहते हैं। तेरी बात शाहत का दान आखिर नहीं होगा, तेरी बादशाही दाऊन कभी ना मिटेगी दाऊन, तेरी बात दुश्मन की बादशाह मिट जाएगी लेकिन तेरी बादशाही कभी ना मिटेगी। है बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, ऐलान करते हैं हवाओं में फिजाओं के कि हमारे खुदा की बादशाही कभी ना मिटेगी, कभी ना खत्म होगी और वो हमें इस बादशाही का हिस्सा बनाता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस लॉर्ड और अज़ीज़ शिंदर तेरा ही शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से बाप। तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं। हम सारा जलाल है बाप आज के खुदावन इन सारे कलाम के लिए और इन 3 पॉइंट्स के लिए खुदावन के हमें अब आप दूसरों को इज्जत देनी है, दूसरों को ऑनर करनी है, दूसरों को रास्ता जानना, अपने से अच्छा समझना है और अब आप हमने इकरार करना, इकरार की दुआ करनी है और खुदा बाप हमने खुदावन और फिर उस गुनाह का शिकार नहीं होना है, क्योंकि अब्बा तेरा कलाम कहता है कि देख अगर देख गुनाह तेरे दरवाजे पर दबता हुआ बैठा, तेरा मुश्ताक है लेकिन तू उस पर गालिब आ। तेरा कलाम कहता है कि हम उस पर गालिब आए यीशु के नाम से बाप, हम उस पर गालिब आते चले जाए बाप, हम दुश्मनों को शिकस्त देते चले जाए बाप, हम दुश्मनों का सत्यानाश करते चले जाए बाप, हम दुश्मनों के फाटकों पर चढ़ जाते रहे बाप यीशु मसीह के नाम से बाप, हम उसका भेड़िया बनाते रहे बाप, हम उसका सर को कुचलते रहे बाप, हम उसका दांतों को तोड़ते रहे बाप, हम उसका जबड़े पर मारते रहे बाप, हम उसका तेरे को कुंद और तीर करते रहे बाप यीशु के नाम से बाप, और जो वो तीर चलाए वापस उसी के सीने की तरफ लगते रहे यीशु मसीह के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया। और दुश्मन जब जब आए वो बिछाड़ खाए और शिकस्त खाए हमारी जिंदगी से यीशु के नाम से बाप, ताकि खुदावन हम पीछे ना बढ़े, पीछे ना जाए बल्कि आगे की आगे बढ़े, तेरे यीशु नाम को जलाल दे। यस लॉर्ड लॉर्ड जीसस खुदावन तेरे शुक्रगुजार है, खुदावन दिल से खुदावन तेरे शुक्रगुजार है खुदावन तेरी आज की आवाज के लिए और गुजरी आवाज के लिए भी बाप, खुदावन जो अपनी बंदी के वसीला से करता है और खुदावन अपने भेदों को हम पर यहाँ करता है बाप, तेरा दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस यस पाकरू तेरा शुक्र हो खुदा, पाकरू तेरा शुक्र हो, यीशु नासरी तेरा शुक्र हो और यस लॉर्ड हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, नासरी तेरा शुक्र हो। आइए खुदावन का शुक्र अदा करें कि वो हमारी जरूरत से बढ़कर, हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए मुहैया करता है, हम उसका शुक्र अदा करें। हमसे बढ़कर वो हमसे प्यार करता है, हम अपने आप को उतना प्यार नहीं करते हैं लेकिन वो हमसे भी बढ़कर हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने अपना लहू बहा दिया, क्योंकि उसने हमें उसने हमारी जो शक्ल है अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, तो हम उसकी आंख की पुतली की तरह महफूज रहते हैं, वो हम अपने आंख की पुतली की तरह महफूज रखता है। आए खुदावन का शुक्र अदा करें। हालेलुया। रोज़ और अज़ीज़ शिंदर बेरे ज़ेरी, खुदावन तेरा ही शुक्र है खुदावन कि तूने हमें अपनी आंख की पुतली कहा है बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें अपनी हाथों की हथेलियों पर हमारी सूरत दावन खोद रखी है, तू हमारे नामों से वाकिफ है बाप, तू हमारे किरदार से, हमारी सोच और ख्यालों से वाकिफ है बाप, तू हमारे माजी हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस लॉर्ड तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। इसी तौर से आई है बाप खुदा इस्लाम है बाप, मैं सारा को बाप जब आज उसकी बर्थडे है अब बाप हम सब मिलकर बाप सारा को तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपा देते हैं। खुदावन तेरी हुजूरी तेरी बच्ची पर मांग लेते हैं, खुदावन तेरा मसा सारा पर मांग लेते हैं, खुदावन तेरे मुकाशफे तेरी बंदी पर मांग लेते हैं, तेरा जोर तेरी बंदी पर मांग लेते हैं, तेरी हुजूरी तेरी अनाउंसिंग तेरी फेवर तेरी शिकायना ग्लोरी तेरी बंदी पर मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से तेरे फरिश्ते उसका शहीद रहे, तेरा
पाक रूह उस पे गुजरे, तेरे लोह की कुदरत उसकी नस नस रग रग लू लू में काम करे, खुदावन तेरा खून उसकी हड्डियों में, उसकी रगों में, नसों में बाप दौड़ता रहे बाप, और जिंदगी पाती रहे तेरी बच्ची, उधर सरफराज होती रहे बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप। ये बच्ची हड्डियों में जोर पकड़े, मसल्स में जोर पकड़े, दान रूह में जोर पकड़े, रूहानी तौर पर कुव्वत हासिल करे यीशु मसीह के नाम से। खुदा दुश्मन जब जब इसकी तरफ आए तो वो शिकस्त खाए। खुदा ये बच्ची जहां जहां जाए सरफराज की जाए, जहां जाए कामयाब हो, जहां जाए फतह पाए, जहां जाए दुम नहीं सर ठहरे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस दाऊद अपने तेरा चेहरे का, अपने चेहरे का नूर इस पर चमकाना, और ये वो और रोशनी बने जिसके बारे में तू कहता है कि चिराग जला कर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, जिससे घर के सब आने जाने वालों को रोशनी पहुंचती है यीशु मसीह के नाम से। और ये वो नमक बने जिसके बारे में तूने कहा है कि तुम जमीन का नमक हो, और यीशु के नाम से बाप ये वो इसके अंदर वो नमकीनियत, वो नमक का रहे बाप, वो मजा रहे बाप, वो खुदावन बाप, खुदावन वो खुदावन वो खुदावन वो इसके अंदर खुदावन ऐसे खुदावन बातें और काम हो खुदावन जो खुदावन इसको खुदावन प्रोमिनेंट करे दूसरों से यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड हालेलुया। रोजा रे जेरे रे बेरे जिए रे शिंदर बर, यस माय लॉर्ड, यस फादर गॉड, तेरा शुक्र, तेरा वादा है अपने लोगों को बरकत पर बरकत देने का, खुदावन ये बरकत पर बरकत पाए बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तेरी तारीफ। हम सब मिलकर खुदावन तेरी बच्ची को बरकत देते हैं खुदावन, ये अपने आने वाले खुदावन सालों में तुझे अपने साथ खुदावन गहरे तौर पर पाए, और तेरी गहरी हुजूरी का एक्सपीरियंस करे अपनी जिंदगी में, तुझे अपने साथ करे, अपने कामों में, अपने आने जाने में, अपने सारे फैसलों में, अपनी सारी खुदावन बाप सारी जिंदगी में खुदावन तुझे खुदावन हासिल करने की हासिल करे, और तुझे अवलियत देती रहे यीशु मसीह के नाम से बाप। तेरा शुक्र हो, इसके सारे फ्यूचर प्लान को तेरे हाथ में दिए जाते हैं, माजी हाल का फ्यूचर का तू ही खुदा है, तू ही मुहाफिज है, और तू ही इसका मुहाफिज होना, तू ही इसका रहनुमा होना, और इसके आगे आगे चलना, रास्तों का हमवार करना, तो बाप अपनी बच्ची को सरफराज करना, ये काम करने वाली नहीं बल्कि काम करवाने वाली हो यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से बंद दरवाजे इसके लिए खुलते चले जाए, ना हमारा रास्ते इसके लिए हम मारते चले जाए, और यीशु मसीह के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड, अपने बच्चे को बरकत देना, और सारी एजुकेशन लाइफ में खुदावन बाप इसको सरफराज कर और बरकत देना बाप। यीशु मसीह का नाम, जो कुछ भी बोला गया कहा गया खुदावन के बारे में, हम तमाम नेगेटिव वर्ड्स को यीशु के नाम से बाप हम काट डालते हैं और कैंसिल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से बाप। हर तरह का मनफी और नेगेटिव वर्ड जो उनके बारे इसके बारे में बोला गया हम काट डालते हैं और खत्म करते हैं उसके लिंक्स को यीशु के नाम से बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप। या सारी स्टडी में यही शामिल आ जाते हैं, या सारा स्टडी कामयाब स्टडी में और तुझ में बढ़े बाप, तुझ में ग्रो करे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो सारी चीजें तुझे मिलती जाएंगी। दाऊद ये इस कलाम का हिस्सा बने, इस कलाम में पढ़ती चली जाए, दाऊद ये कलाम, तेरा कलाम इसकी जिंदगी में सलाहियत कर जाए, तेरा कलाम इसकी जिंदगी में कुव्वत पर कुव्वत लाए, तेरा कलाम इसकी जिंदगी में ये बरकत को लाए कि पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तुझे सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। दाऊद ये सारी जो दुनियावी तौर पर चीजें चाहिए होती हैं, दाऊद तू अपने लोगों को कभी भी भूखा प्यासा नहीं छोड़ता, कभी भी तूने खुद कहा है कि शेर बबर के बच्चे तो हाजिरमंद भूखे रह सकते, लेकिन खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे यीशु मसीह के नाम से बाप। तो अपने बच्चे के इसी तौर से साथ रहना है बाप, ताकि तुझे हर पल ये अपने पास पाए, हर लम्हा तुझे अपनी तेरी तुझे महसूस करे, तेरी हुजूरी को, तेरे लफ्ज़ को महसूस करे यीशु मसीह के नाम से बाप। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, ओ लॉर्ड तेरा शुक्र हो, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तो तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ करते हैं। एक दफा बेबाब, एक दफा फिर बात सारे ग्रुप के लिए, सारे प्रस्तुत के लिए, सारे हमदसना के लिए, सारे कलाम के लिए, इन सारी जिंदगियों के इकट्ठे होने के लिए, इनकी लगन के लिए, इनके प्यार और मोहब्बत के लिए, इनके आने के लिए, इनके टाइम देने के लिए तुझे तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी ही तारीफ, तेरी तारीफ करते हैं, और हम सारे ये सुनाम को देते हैं, ये सब कुछ मांग लेते हैं उसी तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली कदर नाम में, आमीन आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।
मैंने आज देखा है कि एक जैसे जब फ्रूट के लिए सुरैया प्रेयर कर रही थी तो मैंने देखा कि ऐसे जैसे एक वाइट चादर जैसी है, वो उसने हमें कवर किया है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद जैसे कह लें हम देखते हैं कि मेरा ख़्याल है जो पालूस रसूल के ख़त हैं उसके हर उसमें में लिखा हो कि तुम्हें वो इत्मीनान और तसल्ली इत्मीनान जो है वो हासिल होता रहे। यानी खुदावंद जो है हम्म, हमें कवर करके रखे। यही एक तसल्ली और इत्मीनान है कि हम क्या है खुदावंद के उसमें लहू में छुपे रहें और खुदावंद जो है उस अपने बाजुओं में हमें छुपा के रखे। तो इसी तरह कह लें कि मैंने यानी मुझे खुदा ने दिखाया कि ये फ्रूट जो है असल में ये है कि जब हम खुदावंद में छुपे रहते हैं तो फिर हमें तसल्ली, इत्मीनान और वो जो एक पीस है वो हमारी ज़िंदगियों में आता है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने आज वो वाला मसा जो है हमारे ऊपर उंडेला है। और मैंने देखा है कि जब श्रेया सारी सब पूरे ग्रुप के लिए प्रेयर कर रही थी कि जहाँ कहीं भी हमने ऐसा कुछ किया हुआ है कि किसी को अपने से बेहतर नहीं सॉरी अपने आप को दूसरों से बेहतर जाना ज़्यादा जो इसका उस वक़्त जो बोल रही थी कि हम अपने आप को ही कई दफ़ा होता है सही साबित करते रहें और रास्तबाज़ समझते हैं और दूसरों को कमतर जानते हैं। तो उस वक़्त मैंने देखा है कि आज खुदा ने हम में से बहुत से लोगों को आज़ाद किया। मैंने इस तरह देखा है कि जैसे हाथ मैंने देखे हैं और उसके अंदर जैसे वो जो होती हैं चेन जैसे जो हैं वो हम बंधे हुए हैं उनमें और वो खुल गई हैं और वो खुली हैं। उसके नीचे मैंने देखा है कि जैसे जो एक खुदावंद का मसा जो ठहरा हुआ है, एक बादल की तरह जैसे कह लें उसने हमें उठाया हुआ है और धुआँ जैसे-जैसे होता है तो उस पे खड़े हैं और वो ही मसे के ज़ोर से वो जुआ भी टूटे हैं यानी वो क्या ज़ंजीरें भी टूट गई हैं और दरवाज़े खुलते जा रहे हैं और दरवाज़े इस तरह खुल रहे हैं जैसे वो ही जो नीचे मैंने देखा वो बादल जैसा जो है या धुएँ की तरह जैसे है, वही हमें अंदर लेके जा रहा है और जहाँ पे रोशनी ही रोशनी है। तो इसलिए ये बहुत मैं कहूँगी कि ज़रूरी है कि जो हम अपने आप को ही रास्तबाज़ समझते रहते हैं, अपने आप को दूसरों से समझते हैं कि शायद मैं ही ठीक हूँ, दूसरे सब जो गलत हैं। तो ये रवैया जो है ये ठीक नहीं है। तो आज खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है और जब आज़ाद किया है तो हमारे लिए दरवाज़े खुलते जा रहे हैं, जो कि हमें खुदावंद के तख्त की तरफ लेके जा रहे हैं और अगर इसका मतलब है कि ये रवैया हमारे अंदर नहीं है, हमारी नेचर नहीं है, हम दूसरों को कमतर जानते हैं, तो इसका मतलब है ये दरवाज़े हमारे लिए बंद हैं। हम खुदावंद के तख्त की तरफ नहीं जा सकते, है ना? तो इसलिए आज वो दरवाज़े जो हैं खुल गए हैं और खुदावंद ने हमें वो फ़ज़ल दिया कि हम अ, दूसरों को अपने से बेहतर जानें। और फिर जब सारा के लिए प्रेयर कर रही थी सुरैया तो मैंने इस तरह देखा जैसे बहुत ऊँचे जैसे कह लें आसमान के बीच में कह लें एक तख्त लगा हुआ और उसपे मैंने इसको देखा जैसे इससे छोटी है जितनी अब है इसकी एज यानी इसने फ्रॉक जैसी पहनी हुई है। लेकिन मैंने देखा कि एक उसके नीचे एक चक्की जैसी बनी हुई है। अ, तो ये एक मैंने इसको देखा है कि जैसे इसका बदन जो है वो एक कह लें एक लिक्विड की तरह तब्दील हो गया है और वो चक्की में पिस रहा है। और जब ये चक्की में पिस रहा था तो उसके बाद मैंने देखा कि एक स्पिरिचुअली इसकी जो बॉडी है और ये एक मैच्योर या एक बड़ा जैसे वो पहले बच्ची सी देखी है, लेकिन उसके बाद मैंने देखा है यानी एक खाला सा देखा है। यानी पहले जो था इसका जिस्म जो था बिल्कुल जिस्मानी तौर पे देखा है। लेकिन बाद में देखा एक जैसे रूहानी तौर पे इसकी जो बदन है और वो बहुत ऊँचा और जैसे कह लें बहुत मोटा इस तरह मैंने देखा है कि
खुदावन जो है जो कुछ भी अब इसकी जिंदगी में हो रहा है या आगे भी जो कुछ होगा, खुदावंद उस मुश्किलों को, उस परेशानियों को या जो भी कह लें इसकी जिंदगी में आएंगी, खुदावंद उसको बना रहा है, या जैसे कह लें हम कहेंगे कि सोने की तरह इसको तार है। तो खुदावंद जो है, जैसे वो मैंने देखा ऊपर एक कह लें तख्त लगा हुआ है, तो खुदावंद यानी कि यानी इसकी जो कॉलिंग है वो हाई है, तो उसके लिए इसको मुश्किलों में से, परेशानियों में से कह लें गुजरना पड़ेगा, सफरिंग में से गुजरना पड़ेगा। जो कि हम देखते हैं कि मसीही जिंदगी में हम सबको ही गुजरना पड़ता है, लेकिन इसकी कॉलिंग जो है वो हाई है। तो इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपनी बेटी को एक पाक बर्तन जो है बना रहा है, और खुदावंद इसको यूज करेगा, इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं सारे आज के कलाम के लिए। और अगर खुदावंद ने आपको भी कुछ दिखाया है या खुदावंद कुछ बोला है, तसल्ली दी है या आज के कलाम से या दुआ में, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं आप, या फिर हम मीटिंग को बंद करें? प्रेज द लॉर्ड। दी दुआ तो मैं नहीं सुन पाई, पर कलाम से तसल्ली मिली प्रेज गॉड। और कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं पता थी, वो समझ में आई। प्रेज गॉड, प्रेज। जी, बस इसीलिए मेरे एक दिल में था कि हम इसको थोड़ा जाने, क्योंकि सबको, जैसे कल समीना ने भी कहा यहूदा के बारे में, लावियों के बारे में, इतना मेरा ख्याल है जैसे कह लें डिटेल से हम सबको ही नहीं इतना पता था। तो बस मेरा ख्याल है यही थोड़ी सी मेरी कोशिश है कि हम इसको गहरे तौर पे जानें, क्योंकि जिस तरफ जाना है, जिस रास्ते पे चलना है या जो हम बन रहे हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसलिए खुदा उनका शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। अगर समीना आपने कुछ कहना नहीं तो हम फिर हाँ, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मैं बंद यही, हाँ जी, मैं यही कहना चाहती कि आज ही यहूदा के बारे में, मतलब मैं जब आई हूँ तो मैं सुन रही थी कलाम, तो यही मैं कहना चाहती थी कि मतलब हमने यहूदा के बारे में इतना ज़्यादा नहीं था, डीपली नहीं था जाना, पर जिस तरह आज यानी कि 2 दिनों में मैंने जाना है, समझा है ना सारा यहूदा के बारे में, कि खुदा ने मतलब यहूदा को ही क्यों इतनी मतलब यूकोब ने ब्लेस किया, बरकत दी, और मूसा ने भी यहूदा को इस्तेमाल किया है। तो ये मुझे आज सारी मतलब कलाम के विषय समझ लगी, और अच्छा किया ये आपने, मतलब खुदा ने आपके दिल में डाला और हमें बताया। तो मैं मतलब ये सारी चीज़ों को देख रही थी और मुझे अच्छा लगा। तो खुदा प्रेज का गॉड। शुक्र है कि खुदा ने हमें मतलब ये छोटी बातें जो ना, जो हम मैं नहीं भी समझ पा 1 रहे थे। महीने पहले, मैं भी काफी महीने पहले ना ये इस बात में सोच रही थी कि यहूदा का बब्बर ना अक्सर गानों में भी इसके बारे यहूदा का बब्बर इस्तेमाल होता है, गीतों में भी, पर मेरे दिल में ये बात रही यहूदा का बब्बर ना, तो लेकिन खुदा उनका शुक्र है, मतलब सोच रही थी कि इसके पीछे क्या वो वजह है, क्या मतलब क्यों यीशु मसीह को ये कहा कि यहूदा हाँ, का बब्बर है ना, मतलब क्यों ये बात कही कि क्या है इसके पीछे। तो अब शुक्र है खुदा का कि उसने मतलब हमारे दिल के, मतलब दिल में जो बात होती है वो पॉइंट जो है वो खुदा जो है वो खड़ा कर देता है और हमें मतलब गाइड करता है। शुक्र है। शुक्र है खुदा का। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा उन पाक रूह हमारे दिलों को जानता है कौन सा कलाम हमें चाहिए। आमीन तो आमीन, खुदा उनका प्रेज द शुक्र लॉर्ड। करते हैं। प्रेज गॉड। तो मेरा सरैया को मेरा ख्याल पता चल गया होगा कि असल में मैं ये किस तरफ लेके जा रही हूँ। हमने दुल्हन तक भी पहुंचना है यहूदा को और बिल्कुल इसलिए मेरा फोकस जो है इस पे है। तो आमीन। असल में हमने जो कह ले मेरी जो एक पॉइंट है इसने उस तक मैं लेके जाऊंगी कि असल में आमीन सब ही बेटे बेटियां हैं, लेकिन यहूदा और लावी क्यों तख्त तक पहुंच गए बाकी सारे तख्त तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमने सीखना है। यही इस ग्रुप का कह थीम है या बोझ है मेरा, कि बाकी भी सब बचाए जाएंगे जो मसीह में आ गए हैं। जैसे रोबन को था, वो उसकी जान जो है या उसकी रूह जो है वो बच गई, लेकिन वो
तख्त तक नहीं पहुंच सके, है ना। तो इसलिए क्योंकि सब मसीही ये समझते हैं कि जब यीशु मसीह ने आना है तो हम सब हवा में उड़ के जाएंगे। ये पॉइंट जो है मैं ये समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, Hallelujah. Praise the Lord. कि सब बेटे हैं, ठीक है। Praise the चलें Lord. जी, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। Thank God you. bless you too. God bless you.